नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज कॉल्ड एज, difference between standard cost and actual cost is called as option A, option A, variance, फिर सेकेंड ऑप्शन है प्रॉफिट, थर्ड ऑप्शन दिया है वेस्टेज, फोर्थ ऑप्शन है लॉस. Which one will be the correct answer? Option A. Option A. Variance. Yes, option A, variance will be the correct answer. Next, material cost variance. Material cost variance is favorable when option A, actual cost of material is more than standard cost of material. B, standard cost of material is more than actual cost of material. C, actual quantity of material is more than standard quantity of material. And D, standard quantity of material is more than actual quantity of material. Which one is correct? Bolo. Option B. Standard cost of material. Option B, that is standard cost of material is more than actual cost of material. अभी इसी तरीके से आपको दूसरा भी पूछा जा सकता है, लेबर कॉस्ट variance is favorable when option A, actual cost of labor is more than, सेम है ना क्वेश्चन, क्या दिया है, ओनली मटेरियल का क्या कर दिया, मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल की जगह आएगा लेबर. दूसरा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर इज more than
actual cost of labor, actual cost of labor, and last, sorry, number C, actual labor hours, actual labor hours is more than standard labor hours. And last one, standard labor hours, standard labor hours आर चाहिए, वो इज नहीं चाहिए, आर मोर देन एक्चुअल लेबर आवर्स। क्या आएगा आंसर? एक्चुअल लेबर आवर्स। ओके, क्या आएगा आंसर बोलो। ऊपर हमने मटेरियल का किया ना, वैसे ही करना है। बोलो क्या आंसर है? ऑप्शन बी। तो अभी इसका आंसर क्या आया? जैसे ऊपर का किया हमने वैसे, ऑप्शन बी। अभी इसके ऊपर और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं देखो। अगर आपको इसके ऊपर और क्वेश्चंस पूछने हैं तो कैसे पूछा जा सकता है? उल्टा, यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज एडवर्स व्हेन, ओके, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज एडवर्स व्हेन। यहाँ पे आपको फेवरेबल पूछा है, उल्टा आपको वहां पे पूछना है तो क्या पूछ सकते हैं? एडवर्स पूछा जा सकता है। गॉट इट? ओके, सो आपको उसके हिसाब से दोनों इसके प्रिपरेशन में रहना है। ओके, व्हाट नेक्स्ट? Overheads includes ऑप्शन ए दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। ऑप्शन बी, indirect material, indirect labor, indirect expenses, indirect material, indirect labor, indirect expenses। ऑप्शन सी दिया है फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स ओनली, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स ओनली। इसमें से क्या करेक्ट आंसर है? So what will be your correct answer? Option B will be your correct answer. Next, next one is idle time variance is caused due to, idle time variance is caused due to, idle time मतलब वेस्ट हो गया टाइम, उसमें हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे, आइडल बैठे थे वर्कर। cause due to A, power failure, power failure, B, change in efficiency, change in efficiency, C, change in quantity, and D, change in rate. Change in
ग्रेट, विच वन इज द करेक्ट आंसर? खाली बैठे वर्कर्स ऐसे कब होता है? एफिशिएंसी कम हो गया, क्वांटिटी कम हो गया या चेंज इन रेट हो गया तो वर्कर्स खाली नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर पावर फेल्यूर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर विल बी आंसर ए, पावर फेल्यूर। ओके, क्योंकि अगर पावर फेल्यूर है तो वो टाइम पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। Okay. So first will be contribution margin is known as contribution margin is known as option A, marginal income, option B, gross margin, option C, net income, and last option is net profit. The correct answer is gross margin. Correct answer क्या है इसका? Gross margin. कितना क्या आएगा आंसर? आंसर B, gross margin. Next, break-even analysis may be described as break-even analysis. Break-even analysis may be described as option A, comparison between sales and cost. Comparison between sales and cost. Sales and cost. Option B, comparison between production and sales. Comparison between production and sales. Option C, comparison between fixed cost and variable cost. Comparison between fixed cost and variable cost. साथ साथ सोचो क्या आंसर हो सकता है, कौन सा करेक्ट आंसर है। एंड लास्ट ऑप्शन, कंपैरिजन टू मेक आउट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कंपैरिजन टू मेक आउट capacity utilization. What will be the answer? What will be the answer? ब्रेक इवन मतलब जहां पे सेल्स और कॉस्ट सेम रहता है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन रहता है ब्रेक इवन पॉइंट मतलब। तो इसका मतलब द आंसर विल बी कंपैरिजन बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट। आंसर ए विल बी योर आंसर। What is break-even point? The situation where there is no profit, no loss. Got it? So there is a comparison between sales and cost. Next, an increase in sales price. An increase in sales price option A does not affect break-even point. Does not affect break-even point. Option B, lower the net profit. Option C, increase the break-even point. Increase the
break even point, and option C, lower the break even point. Lower the break even point. What will be the answer? देखो लॉजिकली सोचना है. अगर सेल्स प्राइस इंक्रीज हो गया तो ब्रेक इवन पॉइंट पे डेफिनेटली अफेक्ट होने ही वाला है, क्योंकि सेल्स बढ़ेगा तो कॉस्ट और सेल्स का कंपैरिजन है, तो डेफिनेटली कॉस्ट या सेल्स दोनों में से कुछ भी चेंज होता है तो इट विल अफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट. तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा. नेट प्रॉफिट्स का उसका डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगा. लो, अगर सेल्स बढ़ता है रिलेशन होगा, लेकिन सेल्स बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो चांसेस है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, लोअर नहीं होगा. इंक्रीज द ब्रेक इवन पॉइंट, अगर हमारा सेल्स बढ़ेगा तो हम लोग जल्दी कॉस्ट कवर कर पाएंगे, अपना सेल्स प्राइस बढ़ाएंगे, तो इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज होना रॉन्ग आंसर है. द करेक्ट आंसर इज डी, lower the break even point. Answer is D, lower the break even point. Next, अभी इसका उल्टा स्टेटमेंट. A decrease in sales price a decrease in sales price, same option A B C D, जो ऊपर दिया है वही ऑप्शन. अभी क्या आएगा? अभी क्या आएगा आंसर बोलो. सेम ऑप्शन. ऑप्शन ए does not, option A does not affect break even point. Option B, lower the profit. Option C, increase the break even point. Option D, lower the break even point. Which one is correct? Option D, lower the break-even point. सोच के आंसर दो. ऊपर हमने इंक्रीज इन सेल प्राइस में डी ऑप्शन दिया था, तो डिक्रीज में भी सेम ऑप्शन आएगा क्या? इसका Option उल्टा C. ऑप्शन सी विल बी देयर. करेक्ट, गॉट इट. Yes, ma'am. तो इन दोनों में से कोई भी एक बार ऐड करके रखो तो सेकंड वाले का आंसर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ओके, व्हाट नेक्स्ट? Fixed cost per unit decrease when fixed cost per unit. Option volume increases. Volume मतलब total production, हाँ. Production volume increases. Option B, variable cost per unit decreases. Variable cost per unit decreases. Option C, production volume decreases. Production volume decreases. And option D, prime cost per unit increases. Prime cost per unit decreases. Prime cost increase or decrease, कुछ भी बोल सकते हो इधर. Prime cost decreases. What will be the correct answer? C, fixed cost always remain constant. Same रहती है fixed cost. Total fixed cost always remain same. But जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगी. Got it?
जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगी और प्रोडक्शन कम होगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी. So what will be the answer? Answer will be option बोलो. A. ऑप्शन ए करेक्ट. आंसर विल बी ऑप्शन ए. अभी इसका उल्टा क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन. ऑप्शन सेम देंगे लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ेगा. व्हेन कहाँ है ना नीचे देखो. सेम ऑप्शंस देंगे आपको. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीजेस. अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी? डिक्रीज हो जाएगी. ओके नेक्स्ट. टू ऑब्टेन ब्रेक इवन पॉइंट to obtain break even point in rupees, total fixed cost is divided by. Now imagine the formula of break even point in rupees का क्या फॉर्मूला देखो और उसके हिसाब से आंसर सोचो क्या आएगा. फर्स्ट ऑप्शन दिया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. दूसरा दिया है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. और लास्ट ऑप्शन दिया है पीवी रेशियो. सो इमेजिन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज. क्या फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का? बोलो. फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट PV इक्वल ratio. टू पीवी रेशियो. सो करेक्ट. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी.